یہ ظہیر ملک کچھ عجیب سا نہیں لگتا تھا، ہمیشہ خاموش اور کتابوں میں ڈوبا رہنے والا، نہ کسی دوستوں کے ہجوم میں نظر آتا، نہ لڑکیوں میں دلچسپی لیتا۔ روحی نے بات چھیڑی تو سب کے دل میں وہی سوال آیا، آج کل کے دور میں ایسا کون ہوتا ہے؟ یا تو یہ آسمان سے اترا کوئی عجیب انسان ہے، یا پھر ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ روحی کے تبصرے پر ایمن نے دور بیٹھے ظہیر پر ایک نگاہ ڈالی، جو واقعی پوری طرح سے توجہ سے کتاب میں منہمک تھا۔ وہ میچور ہے، اسے پتا ہے کہ آگے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ باقی لڑکوں کی طرح باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ایمن نے بنا سوچے اس کا دفاع کر دیا تو ساری دوستیں حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ تمنا نے فوراً چھیڑ دیا، واہ، لگتا ہے تم نے تو اسے بہت اچھی طرح جان لیا ہے۔ یہ سن کر ایمن کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، نظریں چرا کر وہ جلدی سے اپنی کتابوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ سب یونیورسٹی کے بڑے گارڈن میں بیٹھ کر نوٹس بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سب کی نظریں بار بار انہیں چند قدم دور بیٹھے ظہیر پر جا ٹکتی تھی، جو اپنے انداز میں واقعی سب سے مختلف لگ رہا تھا۔ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھی کہ وہ اچانک خود ان کی طرف بڑھ آیا۔ مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ احمد نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، کل میں ایبسینٹ تھا، کیا آپ میں سے کوئی مدد کر سکتا ہے؟ دراصل میں یہاں زیادہ کسی کو نہیں جانتا۔ ظہیر کے چہرے میں جھجک اور چہرے پر ہلکی شرمندگی تھی۔ روحی نے فوراً موقع غنیمت جانا اور شرارت سے کہا، جی بیٹھ جائیں، یہ ٹاپک تو ہماری ایمن کا فیوریٹ ہے، وہ تو آپ کو پلک جھپکتے میں سمجھا دیں گی۔ سب نے ایک دوسرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور ایمن کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں مزید شرارت ابھری۔ ایمن نے سخت نظروں سے دوستوں کو گھورا مگر ظہیر کی کتاب اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجیدگی سے پڑھنے لگی۔ تمنا نے سب کو اشارہ دیا، چلو کیفے چلتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ ایمن تم اسے سمجھاؤ، ہم وہیں آتے ہیں۔ اور وہ سب جان بوجھ کر دونوں کو اکیلا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ ایمن کو عجیب سا محسوس ہوا کہ کہیں ظہیر کو یہ سب نظر نہ آ جائے، مگر وہ سب ہنستے کھیلتے آگے نکل گئی اور وہ مجبوراً ظہیر کے سامنے بیٹھ گئی۔ ظہیر نے چند جگہ پینسل سے نشان لگا رکھی تھی۔ ایمن نے آسان لفظوں میں اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے پڑھائی کوئی مشکل نہ تھی، لیکن ظہیر کے سامنے بیٹھ کر مسلسل بات کرنا کچھ مشکل لگ رہا تھا۔ بار بار اس کی نظریں بے اختیار ظہیر کے چہرے پر بھٹک جاتی، جو پوری سنجیدگی کے ساتھ کتاب میں جھکا ہوا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایمن نے ساری وضاحت مکمل کر کے کتاب بند کی اور واپس اس کی طرف بڑھا دی۔ تھینک یو ویری مچ میم۔ ظہیر نے دل سے شکریہ ادا کیا اور اپنا بیگ سمیٹتے اٹھا۔ ایمن کو اس کا میم کہنا بالکل اچھا نہ لگا۔ مسکراتے ہوئے بولی، میرا نام ایمن ہے، آپ مجھے نام سے بلا سکتے ہیں۔ یہ سن کر ظہیر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو ایمن۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ موسٹ ویلکم، جب چاہیں مجھ سے مدد لے سکتے ہیں، ایمن نے خوش دلی سے کہا۔ ظہیر نے ایک لمحے کے لیے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بولا، یونیورسٹی میں تو زیادہ ٹائم نہیں ملتا، اور اس کے بعد تو آپ نہیں ملتی، تو پھر مدد کیسے ہوگی؟ وہ نظریں جھکائے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا اور ایمن نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر اچانک اس نے کہا، میرا نمبر لے لیجئے، جب بھی ضرورت ہو کال کر لیجئے گا۔ ایمن نے بنا جھجکے اسے نمبر دے دیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی یہ لڑکا دوسروں کی طرح فلرٹی یا نظر باز نہیں تھا۔ ظہیر نے نمبر لیتے وقت پھر سے اس کا شکریہ ادا کیا اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر بھر گئے۔ یونیورسٹی سے تھکی ماندی جب ایمن گھر لوٹی تو اس نے دیکھا کہ بابا صوفے پر بیٹھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ بابا، آپ اس وقت گھر پر؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر جاوید صاحب نے ایک اداسی سے مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کو دیکھا۔ ایمن نے بے چین ہو کر کہا، بابا بتائیے تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولے، بیٹا، مجھ پر اوپر سے سخت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ریزائن مانگا جا رہا ہے۔ مجھ سے ان بڑے بڑے بدماشوں پر ہاتھ ڈالنے کی سزا ملی ہے کہ اب میری نوکری چھیننے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ جیسے ہی انہیں لگا کہ میں ان کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں اور ایک مضبوط کیس بنا سکتا ہوں، انہوں نے مجھ سے ہی میدان سے ہٹنے کی تیاری کر لی۔ ان کے لہجے میں تھکن، بے بسی اور کب سے چھلک رہا تھا۔ ایمن نے تڑپ کر کہا، بابا جانی، آپ نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے کہ سچ اور ایمانداری کا راستہ کتنا کٹھن ہوتا ہے، پھر کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، سب بہتر ہوگا۔ وہ محبت اور نرمی سے باپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی،
مگر سامنے بیٹھا وہ شخص جس نے ساری زندگی ایمانداری وردی پہن کر اپنے فرائض ادا کیے تھے، آج ٹوٹا ہوا سا لگ رہا تھا۔ دنیا کا یہ کڑا سچ صرف وہی جانتے تھے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہر موڑ پر کانٹے بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمن، میں چاہتا ہوں کہ میری مٹی کو نقصان پہنچانے والا ہر شخص اپنے انجام کو پہنچے، لیکن اب یہ خواب ادھورا سا لگ رہا ہے۔ شاید میں نے غلطی کی کہ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ایمن نے ان کے قریب ہو کر مضبوط لہجے میں کہا، بابا جانی، اگر دباؤ بہت بڑھ رہا ہے تو آپ رسائن دے دیں۔ ویسے بھی آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی اپنی پڑھائی مکمل کروں گی آپ کے راستے پر چلوں گی۔ آپ جو کچھ بھی ثبوت اب تک جمع کر چکے ہیں وہ سب مجھے دے دیجیے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی بیٹی کس طرح ان سب کو ایک ایک کر کے انجام تک پہنچاتی ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں عزم اور لہجے میں طاقت تھی۔ اس کی بات سن کر جاوید صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی اکلوتی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میری بہادر بیٹی۔ انہوں نے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی۔ ایمن بھی جانتی تھی کہ وہ اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بابا جانی، اچانک ایمن کے لبوں پر ظہیر کا نام آ گیا۔ میرا ایک یونیورسٹی فیلو ہے، آپ کا بڑا فین ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے گھر لے آؤں۔ ایمن کو خود حیرت ہوئی کہ اس نے ظہیر کا ذکر ہی کیوں کیا، حالانکہ کئی دن گزر چکے تھے۔ جاوید صاحب نے نرمی سے کہا، کیوں نہیں بیٹی، میں تو چاہتا ہوں کہ نئی نسل ایمانداری کو پسند کرے اور اس راستے پر چلے، جب چاہو لے آؤ۔ پھر انہوں نے ایک بھاری سانس لے کر کہا، بہرحال میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، دباؤ اتنا ہے کہ مجھے ریزائن کرنا ہی ہوگا، ورنہ جھوٹا الزام لگا کر مجھے سزا دی جائے گی۔ اگلے ہی دن یونیورسٹی میں ظہیر نظر آیا تو ایمن فوراً اس کے پاس جا پہنچی۔ آپ کو بابا سے ملنا تھا نا، آج میرے ساتھ چلیں گے، واپسی پر میں نے بابا کو آپ کے بارے میں بتایا ہے، وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ ایمن کے لہجے میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے یہ ملاقات صرف عام نہ ہو بلکہ کچھ خاص ہونے والی ہو۔ ظہیر نے بھی اس چمک کو محسوس کیا، مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میں چلوں گا آپ کے ساتھ، اور پھر یونیورسٹی ختم ہوتے ہی وہ خود ایمن کے پاس آ گیا۔ ایمن دوستوں کے ساتھ کھڑی ہنس بول رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ظہیر کی آواز آئی، چلے ایمن۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے ظہیر کھڑا تھا۔ لمحے بھر کے لیے ساری محفل جیسے خاموش ہوگی اور پھر سب کی نظریں یکدم ایمن پر جا پڑی۔ روحی نے فوراً حیرت سے پوچھا، کہاں جانا ہے ایمن؟ ایمن نے ذرا سا جھجکتے ہوئے کتابیں سمیٹی اور مختصر سا جواب دیا، ظہیر کو بابا سے ملنا تھا، اس لیے گھر لے جا رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اب دوستوں کی نظریں اور تبصروں کا طوفان آنے والا ہے، اس لیے کسی کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے ظہیر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی سہیلیاں یکدم گنگ سی رہ گئی تھیں۔ تمنا نے روحی کو کونے ماری ہوئے کہا، دھیرے سے کہا، یہ ایمن کب سے ظہیر کے چکر میں پڑ گئی ہے؟ ہم تو مذاق میں چھیڑ رہے تھے، یہ تو معاملہ کچھ سیریس لگ رہا ہے۔ دونوں حیرت و تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایمن اور ظہیر کو دیکھتی رہ گئی۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ دونوں آخرکار جاوید نیازی کے سامنے بیٹھے تھے۔ ظہیر جیسے سنجیدہ اور سمجھدار نوجوان سے مل کر جاوید نیازی کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس کے انداز گفتگو میں تہذیب تھی، لہجے میں دیمک اور سوچ میں پختگی۔ وہ بڑے اعتماد سے بتا رہا تھا کہ اس کے والدین ایک چھوٹے علاقے میں زمینداری کرتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ بیٹا بھی انہی کے نقشے قدم پر چلے، لیکن اس نے اپنی راہ خود بھی چنی تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر بزنس کرنا چاہتا تھا اور اسی خواب کی خاطر شہر آیا تھا۔ جاوید نیازی ظہیر کو غور سے سنتے اور خوشی سے سر ہلاتے رہے۔ ادھر ایمن اپنی ماں کے ساتھ کچن میں مصروف ہو گئی اور جلد ہی سب نے مل کر لنچ کیا۔ رخصت ہوتے وقت ظہیر نے مؤدبانہ انداز میں اجازت مانگی اور چلا گیا۔ پیچھے رہ گئے جاوید نیازی، جو بیٹی کے سامنے تعریف پر تعریف کیے جا رہے تھے۔ بڑا شریف اور تمیزدار لڑکا ہے، آج کل کے لڑکوں سے بالکل مختلف۔ باپ کے یہ جملے ایمن کے دل میں سکون اتار گئے، جیسے وہ واقعی کوئی بڑی کامیابی حاصل کر چکی ہو۔ شام کو اپنے کمرے میں آ کر ایمن تھکن کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ دل کی دھڑکن کسی اور ہی نام پر بے قابو ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو کسی کے لیے مائل پانے لگی تھی۔ موبائل فون اٹھا کر بے خیالی میں ہی ظہیر کا نمبر نکالا اور کال ملا دی۔ دوسری طرف سے جب اس کی آواز ابھری تو ایمن کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ کچھ سن بھی نہ پائے۔ ظہیر اس کے بابا کی تعریفیں کیے جا رہا تھا اور ایمن بس اس کے لہجے کی مٹھاس اپنے کانوں میں اتارتی رہی۔ چند لمحوں سے شروع ہونے والی بات کب گھنٹوں پر محیط ہوگی، ایمن کو پتہ ہی نہ چلا۔ آدھی رات گزر گئی اور وہ دونوں بس ایک دوسرے کو سنتے اور بولتے رہے۔ محبت آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ یوں دن تیزی سے گزرنے لگے۔
और ये खामोश सफ़र अपनी मंजिलें तय करने लगा। एमन अपने जज़्बात छुपाने की आदी ना थी। वो अक्सर बेतकल्लुफ़ होकर अपनी मोहब्बत जता देती, मगर ज़हीर में एक अनोखा सा हिजाब और शर्मीलापन था। वो कभी बराह रास्त मोहब्बत के लफ्ज़ न कह पाता, हमेशा हदूद याद रखता और मोहतात रहकर बात करता। एक दिन एमन ने हंसते हुए छेड़ ही दिया, इतना तो लड़कियां भी नहीं शर्माती जितना तुम शर्माते हो सुबह ज़हीर। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, एमन, मैं चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत महरम बने। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हलाल तरीके से अपनाऊं। अभी मैं झूठे वादे नहीं करूँगा, लेकिन उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार करूँगा जब तुम मेरी अमानत बनोगी। उसके बाद ही तुमसे वो सारे वादे करूँगा जिन्हें अपनी जान से भी बढ़कर निभा सकूँ। ये अल्फाज सुनकर एमन के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। यही वो जज़्बा, यही वो वक़ार था, जिसकी उसे तलाश थी। उसे पहली बार लगा कि उसने ज़िंदगी में वाक़ई अपना नसीब पा लिया है। 6 महीने कब और कैसे गुज़र गए, किसी को खबर ही ना हुई। उन्हीं 6 महीनों में जावेद नियाज़ी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, मगर वो तमाम सबूत जो बरसों की मेहनत से उन्होंने इकट्ठे किए थे, अपने लॉकर में महफूज़ कर दिए थे। वो जानते थे कि एक न एक दिन ये सबूत किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, इसीलिए उन्होंने इस राज़ को अपने दिल तक महदूद रखा। दूसरी तरफ उन्हीं दिनों में एमन और ज़ुबैर का रिश्ता मज़बूती पकड़ चुका था। एक दिन ज़हीर ने एमन को बताया कि उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो शादी कर ले, क्योंकि उसकी वालिदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये सुनकर एमन सख्त परेशान हो गई। अभी तो उससे अपनी आईसीएस के इम्तिहान की तैयारी करनी थी। मौजूदा सेमेस्टर भी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर ज़हीर अपनी बीमार वालिदा की ख्वाहिश के आगे हथियार डाल चुका था और बस ये था कि शादी हो। एमन के लिए ये मरहला और भी मुश्किल था, क्योंकि घर में उसने कभी अपनी मोहब्बत का जिक्र नहीं किया था। वो अपने वालिद के ख्वाब तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़हीर की मजबूरी के सामने आखिरकार हिम्मत करके बाप से बात। डिनर टेबल पर बड़ी हिचकिचाहट और लरजते लहजे में वो बोली, बाबा, ज़हीर अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। उसकी वालिदा बहुत बीमार है। वो चाहती हैं कि बेटे की शादी जल्दी हो। यह सुनकर जावेद नियाज़ी ने हैरत से बेटी को देखा, फिर अपनी बेगम की तरफ रुख किया और धीरे से पूछा, और आप क्या चाहती हैं बेटी? उनके नरम लहजे में एमन को हिम्मत दी। बाबा, मैं पसंद करती हूँ ज़हीर को। बहुत अच्छा लड़का है। अपनी उँगलियाँ मरोड़ते हुए वो धीरे धीरे ज़हीर की तारीफ करने लगी। जावेद नियाज़ी ने गहरा सांस लेकर कहा, हाँ, मिला हूँ मैं उससे। अच्छा है, लेकिन अभी तो तुम्हारी डिग्री बाकी है और आगे आईएएस का इम्तिहान भी देना है। उन्हें लगा जैसे बेटी बीच राह में अपनी सिमत बदल रही है। एमन ने जल्दी से कहा, बाबा, मैंने ज़हीर से बात की है। वो कहता है कि पढ़ाई पर कोई एतराज़ नहीं करेगा, बल्कि खुद मुझे पढ़ाएगा। बस अभी उसकी माँ की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। वो चाहती हैं बेटे का घर बसा देखे। जावेद नियाज़ी को पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि उनकी बेटी वाकई ही ज़हीर की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी है। वो बेटी के सर पर हाथ रखकर नरम लहजे में बोले, ठीक है, ज़हीर से कहो अपने वालिदैन को भेज दे। देखते हैं। ये सुनकर एमन की खुशी की इंतहा न रही। सानिया जावेद ने बेटी को प्यार से समझाया, बेटा, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, सोच समझ कर करना। हमें तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं, मगर ये जान लो कि तुमने अपने लिए किसको चुना है। एमन ने सर झुकाकर माँ की बात सुनी और फौरन ज़हीर को खबर सुनाई। दूसरी ही सांस में ज़हीर खुशी से झूम उठा। 2 दिन बाद 2 सीधे सादे लोग धोती कुर्ता पहने, एक उधेड़ उम्र मर्द और ढीली ढाली कमीज शलवार के साथ दुपट्टा ओढ़े एक औरत जावेद नयाजी के ड्राइंग रूम में बैठे थे। वो कहीं से भी ज़हीर मलिक के वालिदैन नहीं लग रहे थे। ज़हीर की शख्सियत, अंदाज़े गुफ्तगू सब उनसे मुख्तलिफ थे, क्योंकि वो गाँव के सीधे सादे लोग थे, जबकि ज़हीर अरसे से शहर में पढ़ रहा था। हमारे पास ज़मीनें और पैसों की कमी नहीं, बस हमारा बेटा ही सब कुछ है। हम चाहते हैं कि उसकी खुशी देख लें। ज़हीर की माँ ने बिखरी सांसों में कहा, हम चाहते थे कि बेटा जिम्मेदारी करे, मगर उसका शौक कारोबार का है। खैर, ज़मीनों की आमदनी इतनी है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस हम चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। ज़हीर के वालिद ने निहायत नरमी और इज्जत से बेटी का हाथ मांगा। जावेद नियाज़ी ने कुछ दिन सोचने के लिए वक्त मांगा और 15 दिन बाद फैसला दे दिया। ये फैसला उन्होंने एमन की आंखों की चमक और उसके चेहरे की सुर्खी देखकर किया था। 1 महीने बाद की शादी तय हो गई। जब ये खबर एमन की सहेलियों को मिली तो वो सब हैरान रह गई, क्योंकि एमन ने किसी को कुछ नहीं बताया था। सब उससे नाराज़ हुई, हत्ता कि ज़हीर को भी घेर लिया गया और दोनों को खूब खिंचाई की गई। दोनों नजरें चुरा रहे थे और हंस भी रहे थे।
यूनिवर्सिटी से वापसी पर ज़हीर ने ज़िद से एमन को गाड़ी में बिठाया और कहा, घर फ़ोन करके बता दो कि आज ज़रा लेट हो जाओगी। एमन ने हैरानी से पूछा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ज़हीर ने हंसते हुए कहा, बस जा रहे हैं कहीं, तुम फ़ोन करो मामा को। एमन ने मामा को इत्तला दी और ज़हीर उसे एक बड़ी ज्वेलरी शॉप पर ले आया। मैं चाहता हूँ कि ज़ेवर तुम अपनी पसंद से लो। उसने काउंटर पर डायमंड का ढेर लगवा दिया। सबसे पहले रिंग पसंद करो, हमारी एंगेजमेंट तो हुई नहीं। मैं चाहता हूँ अपनी पसंद की रिंग तुम्हें अपने हाथों में पहना दूँ। ज़हीर ने उसकी उंगली थामते हुए जज्ब से कहा। एमन को लगा वो ख्वाब में है। उसे कभी यकीन न था कि कोई शख्स उसकी इतनी कदर करेगा, इतनी मोहब्बत देगा। वो बस बेखुदी में उससे तकती रही। देखती रहोगी या रिंग भी पसंद करोगी? ज़हीर ने शरारत की तो वह शर्म से लाल हो गई और रिंग्स देखने लगी। आखिरकार उसने एक ब्लू डायमंड रिंग पसंद की। ज़हीर ने उसी वक्त उसकी उंगली में वो रिंग पहना दी, फिर मज़ीद ज़ेवरात भी खरीद लिए। वो दोनों भी गाड़ी में बैठने ही लगे थे कि अचानक गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी। लम्हों में सड़क पर अफरा तफरी मच गई। अचानक होने वाली फायरिंग ने एमन की रूह तक को हिला दिया था। उसकी चीखें फिजा में गूंजने लगी और वह घबराकर ज़हीर के सीने से लिपट गई। ज़हीर ने उसे संभालते हुए तेजी से गाड़ी की तरफ खींचा, दरवाज़ा बंद किया और बर्क रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे से गोली शीशे पर लगी और बैक स्क्रीन टूटकर चकनाचूर हो गई, मगर मुआवजे से दोनों महफूज रहे। काफी दूर निकलकर जब इर्द गिर्द कोई न रहा तो ज़हीर ने गाड़ी रोकी। उसने रुख मोड़ कर एमन को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। हाथ पांव खौफ के मारे कांप रहे थे। एमन, तुम ठीक हो? उसने फौरन उसके लरसते हाथ अपने हाथों में लिए तो एमन बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। ज़हीर ने मुस्कुराकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। मुझे लगा था तुम बाबा जान की तरह बहादुर होगी। ये जरा सी फायरिंग और तुम्हारा ये हाल। एमन ने रोते हुए मुश्किल से कहा, ब्रेव हूं मैं, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं संभल ना सकी। ये था क्या? वो उलझ गई। ज़हीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शायद इसी पट्टी में ज्वेलरी शॉप से कोई डकैत आ गए होंगे। खैर, तुम भी ठीक हो और मैं भी, बस यही काफ़ी है। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मगर एक बात याद रखना, अपने वालिदैन को कुछ मत बताना, बिला वजह परेशान होंगे। शहर के हालात तुम्हें पता ही हैं। उसने प्यार से उसके गाल थपथपाए तो एमन ने सर हिला दिया। रफ्ता रफ्ता उसका खौफ कम होने लगा और ज़हीर उसे उसके घर दरवाजे पर छोड़कर खुदा हाफिज कहकर रवाना हो गया। एमन बैग और किताबें संभालती अंदर आई तो सामने ही बाबा जानी बैठे थे। बेटी को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ बेटा, जल्दी से शादी कार्ड्स फाइनल करने हैं। उन्होंने मुख्तलिफ डिज़ाइन बिछा रखे थे। एमन ने खूबसूरत सुनहरे रंग का कार्ड पसंद किया। शादी की सब तैयारियां मुकम्मल होगी, लेकिन कभी सोचा न था कि तुम इतनी जल्दी मेरे घर से रुखसत हो जाओगी। उन्होंने बेटी के माथे को चूमते हुए कहा और आंखें भीग गई। एमन के दिल में आया कि वो दोपहर का वाकया बता दे, मगर ज़हीर की बात याद आते ही खामोश रही। जावेद नियाज़ी ने उससे मोहब्बत से कहा, बेटे, तुमने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली है, अब शादी तक आराम करो। मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ, और याद रखो, अब बिला ज़रूरत घर से बाहर भी ना निकलना। तुम्हारी दादी कहा करती थी कि दुल्हन शादी से कुछ दिन पहले घर में रहे तो उसके चेहरे पर खास रूप उतर आता है। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। यूनिवर्सिटी से छुट्टी तो ले ली थी, मगर ज़हीर को देखे बगैर चैन कहाँ आता। रात के सुनाटे में ज़हीर की कॉल आ गई। एमन, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है, खिड़की पर आओ ना। ये सुनकर एमन चौंकी। खिड़की पर? तुम नीचे खड़े हो क्या? वो दौड़ कर खिड़की तक गई तो देखा कि दरवाजे के पास ज़हीर खड़ा था, हाथों में सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता लिए और निगाहें मोहब्बत से उसी पर जमाए हुए। रात का 1 बज रहा है और तुम इतनी सुकून से यहाँ खड़े हो? वो हैरान हुई। प्लीज आ जाओ ना, थोड़ी देर बात करनी है। ये फूल भी तुम्हें देने हैं। एमन हंसी। बाबा ने आज ही कहा है शादी तक बाहर मत निकलना। अंकल को क्या पता चलेगा, सो रहे होंगे। आ जाओ प्लीज। ज़हीर के इसरार पर एमन आखिरकार मान गई। फोन बंद करते ही वो बाहर निकली और लम्हों में ज़हीर के सामने खड़ी थी। उसने फूलों का गुलदस्ता थाम लिया और उसकी खुशबू में खो गई। रात की खामोशी में ये लम्हा जादुई लग रहा था। ज़हीर उसे देखकर जज्ब से बोला, मेरा बस चले तो अभी तुम्हें अपने साथ ले जाओ, मजीद इंतजार नहीं होता। उसने बेख्तियार एमन की लटों को छेड़ा। एमन शर्म से लाल हो गई। बस चंद दिन की बात है, फिर हमेशा साथ रहना है। अब जा रही हूँ, बाबा को खबर हुई तो नाराज होंगे। वो मुड़ ही रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी गली में दाखिल हुई
और गोलियों की बौछार होने लगी। ज़हीर ने झपट कर उसे बाजुओं में समेटा और घर के अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाज़ा खुला होने की वजह से दोनों सेकंडों में अंदर पहुंच गए। एमन ज़हीर के सीने से लगी कांप रही थी। कुछ लम्हों बाद गोलियों की आवाज़ें बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। ये सब क्या है ज़हीर? आज एक ही दिन में 2 बार फायरिंग हुई। ये इत्तेफाक नहीं लगता। एमन की आंखों में आंसू थे। एमन कैसी बातें कर रही हो? किसी से हमारी दुश्मनी थोड़ी है। दोपहर वाले वाकये में वाकई डकैत थे। ये भी शायद वैसा ही कुछ हो। ज़हीर ने तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, ये महज इत्तेफाक नहीं, एमन डरी डरी बोली। वो इसे बाबा को उठाने पर इसरार करने लगी, मगर ज़हीर मानने को तैयार न था। शादी में 1 हफ्ता रह गया है, अपने वालिद को परेशान ना करो। कुछ नहीं हुआ और ना होगा। कल सुबह पता चल जाएगा, मोहल्ले में कोई डकैती हुई होगी। अब आराम करो। ये कहकर वो बाहर झांक कर देखने लगा। इर्द गिर्द सुकून था। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर घर रवाना हुआ और पहुंचते ही एमन को फोन किया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, कुछ नहीं हुआ। प्लीज अपने मामा पापा को परेशान मत करना। अगली सुबह उसने बताया कि मोहल्ले में वाकई एक डकैती हुई थी और वो लोग भागते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। एमन को कदरे तसल्ली हुई और शादी की तैयारियों में फिर डूब गई। दिन उड़ते गए और देखते ही देखते वो दिन आ गया जब वो दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। बारात खुशी के शोर शब्द में शादियानों के दरमियान दरवाजे पर आकर रुकी तो हर तरफ रौनक और मुसरत की लहर दौड़ गई थी। थोड़ी देर बाद इजाबो कबूल के अल्फाज गूंजे और एमन ने अपनी पूरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के साथ हमेशा के लिए खुद को ज़हीर मलिक के नाम कर दिया था। रस्मों का सिलसिला चलता रहा और जावेद नियाज़ी ने अपनी दुआओं के साए में अपनी इकलौती बेटी को ज़हीर के हमरा रुखसत कर दिया। बारात मुख्तसर सी थी और काफिला रवाना हुआ। आगे की गाड़ी में एमन और ज़हीर बैठे थे, जबकि बाकी मेहमान पीछे गांव से आए सारे मेहमान होटल में ठहरने वाले थे और एमन के लिए ज़हीर ने एक स्वीट बुक करवा रखा था। इसीलिए बाकी गाड़ियां एक तरफ मुड़ गईं और ये दोनों दूसरे रास्ते पर निकले। लेकिन सिर्फ 15 मिनट गुजरे थे कि अचानक गाड़ी एक झटके से बीच सड़क पर रुक गई। एमन ने चौंक कर ज़हीर को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने ज़हीर के सीने से खून का फवारा फूट रहा था। एमन को समझ ही ना आया कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर उसकी नज़र विंड स्क्रीन पर पड़ी जहां एक गोली सुराख था। उसके औसान खता हो गए। गोली ज़हीर के सीने को चीर गई थी और वह नीम बेहोश सी हालत में ढलक रहा था। एमन चीखती रोती उसे झंझोड़ती रही। ज़हीर ज़हीर प्लीज आंखें खोलो। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। ना कोई गोली की आवाज उसे पहले सुनाई दी थी, ना ही शीशा चीरने की गूंज। बस अचानक उसकी खुशियों की दुनिया टूट कर बिखर गई। मगर वह जानती थी कि उस लम्हे कमजोरी की गुंजाइश नहीं, उसे ज़हीर की जान बचानी थी। उसने कांपते हाथों से उसकी सीट बेल्ट खोलकर उसे अपनी तरफ संभाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। बाबा ने उसे ड्राइविंग सिखाते वक्त कहा था कि मुश्किल वक्त में ये हुनर जान बचा सकता है, और आज वो लम्हा आ गया था। नरसते दिल के साथ आंखों में आंसू लिए मगर हौसले को मजबूत करके वो गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ाने लगी। आधे घंटे के अंदर वो अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ रही थी, जहां जहीर को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। एमन के लबों से बस एक ही दुआ निकल रही थी, एक ही सदा, जहीर होश में आ जाओ। उसने दोनों घर वालों को इतला दी और देखते ही देखते अस्पताल लोगों से भर गया। पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन एमन के पास कहने को कुछ न था, सिवाय उसके कि उसने जहीर के सीने से खून बहते देखा। वक्त जैसे थम सा गया था। 15 मिनट के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और एक जुमले ने सबके कदमों तले से जमीन खींच ली। वी आर रियली सॉरी, ही इज नो मोर। ये सुनते ही एमन ने जमीन पर गिर पड़ी। उसके दिल पर ऐसा वार हुआ था जिससे रूह भी कांप उठी थी। जहीर के घर वाले बैन करके रोने लगे थे। वालिदैन पर क्यामत टूट पड़ी। उनका इकलौता सहारा, उनकी जिंदगी का चिराग बुझ गया था। जावेद नियाजी और सानिया सकते के आलम में खड़े रह गए। अभी तो उन्होंने बेटी को दुआओं में रुखसत किया था और सोचा था कि अब जिम्मेदारी खत्म हुई, लेकिन ये कैसा वार था जो खुशियों के लम्हे को मातम में बदल गया। एमन को होश न रहा। जनाजा घर लाया गया तो कोहराम मच गया। शादी के घर मातम का समा था। बड़े हाल में रखा डोला खाली था, जबकि उसके बराबर कफन में लिपटा ज़हीर मलिक सुकून की नींद सो रहा था। वो ख्वाब जिन्हें देखकर वो दोनों यहाँ तक पहुंचे थे, सब धुंधला गए थे। तदफीन के बाद ज़हीर के वालिदैन रोते धोते गांव लौट गए, लेकिन एमन का दिल और दिमाग सदमे में डूब गया। वो बार बार पागलों की तरह ज़हीर को आवाज़ देती, इनकार करती कि वो दुनिया में नहीं रहा। दोस्तें समझाती रही, मगर वो अपने हाथों में रची मेहंदी को तकती रही, जिसमें छुपा ज़हीर का नाम उसकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ लगता था।
उसने सोचा था कि वो ज़हीर को छेड़ेगी कि अपना नाम ढूँढ कर दिखा, मगर वक़्त ने ये लम्हा दिया ही नहीं। और आज जिसके लिए ज़हीर बरसों से मुंतज़िर था, कभी आई ही नहीं। ज़ेवरात उतार दिए गए, चूड़ियाँ तोड़ दी गईं और ऐमन हल्के जोड़े और बिखरे बालों के साथ बस खामोश बैठी रही। आँखों में बेयकीनी और दिल में वो टूटा ख्वाब जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। ऐमन की हालत देखकर सानिया जावेद का दिल कट कर रह गया। वो आहिस्ता से बोले, ऐमन बेटी कुछ खा लो। मगर ऐमन आंसू बहाते हुए माँ के गले लग गई। मामा ज़हीर ने कहा था हम डिनर साथ करेंगे। मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगी। बेटी की ये हालत सानिया के ज़ब्त को भी तोड़ गई थी। मेरी बच्ची, ये अल्लाह की मर्जी थी। न जाने किसकी नज़र खा गई तुम्हारी खुशियों को। ऐमन सिसकती हुई बुड़बुड़ाने लगी। मामा, ये कौन लोग थे? किसने किया ये सब? फिर उसे यकायक याद आया कि चंद दिन पहले वो और जुबैर फायरिंग से बाल बाल बचे थे। उसका दिल कांप गया। क्या वो गोली मेरे लिए थी? क्या वो मुझे मारना चाहते थे या मेरी खुशियों का कत्ल करना चाहते थे? इसी लम्हे जावेद नियाज़ी कमरे में दाखिल हुए तो ऐमन लपक कर बाप के सीने से जा लगी। बाबा, मुझे आपको सब कुछ बताना है। और फिर उसने ज्वेलर की शॉप का वाकया, गली में होने वाली फायरिंग, सब कुछ सच सच कह दिया। सुनकर जावेद नियाज़ी के चेहरे का रंग बदल गया। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सानिया, ज्वेलर की शॉप पर डकैती हो सकती थी मगर गली में होने वाली फायरिंग नहीं। ये महज इत्तेफाक नहीं था। अगर वाकई डकैती होती तो मुझे ज़रूर खबर मिलती। ऐमन ने रूहानसी आवाज में कहा, बाबा, ज़हीर ने कहा था कि वो डकैत भागते हुए फायरिंग करने लगे थे। मगर जावेद नियाज़ी ने सफ़ी में सर हिला दिया। नहीं बेटी, उसने तुम्हें तसल्ली देने को कहा होगा। ये कुछ और ही मामला है, तुम्हें मुझे फ़ौरन बताना चाहिए था। उनकी आंखों में तशवीश की परछाइयाँ उभर आईं। ज़हीर की कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास डायरी, मोबाइल? ऐमन ने जल्दी से पर्स खोला। बाबा, ये उसका फ़ोन है, डायरेक्ट डॉक्टर ने मुझे बताया था। उसने फ़ोन ऑन किया तो आंखें फट गई। बाबा, ये देखिए, ज़हीर को धमकियाँ दी जा रही थी कि वो मुझसे शादी ना करे। उसने लरजते हाथों से फ़ोन बढ़ाया। स्क्रीन पर कई मैसेजेस मौजूद थे जिनमें ज़हीर को सख्त अल्फाज में धमकाया गया था कि वो ऐमन से शादी करने से इनकार कर दे वरना अंजाम भयानक होगा। जावेद नियाज़ी के होंठ कँप-कँपाए। बेटी, उसने तुम्हें कभी नहीं बताया? ऐमन बिलक उठी। नहीं बाबा, उसने कुछ नहीं कहा। ये लोग आखिर कौन हैं? हमारी शादी खत्म करवा के उन्हें क्या मिला? जावेद नियाज़ी ने आह भरी। ये दुश्मनी तुमसे नहीं, मुझसे है। सब जानते हैं तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मेरा दिल तुमसे धड़कता है, इसलिए तुम्हारी खुशियों को बर्बाद किया गया। वह सर थाम कर बैठ गए कि अचानक उनका फ़ोन बजा। अचानक नंबर से, एक अनजान नंबर से देखकर उन्होंने स्पीकर पर कॉल लगा दी। दूसरी तरफ करख्त आवाज़ गूंजी, शुक्र करो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं किया, सिर्फ दामाद की जान ली है। अगर बाज ना आए तो अगला निशाना तुम्हारी बीवी और फिर तुम्हारी बेटी होगी। अगर कोई सबूत है तो जला दो, वरना तुम्हारे घर समेत सबको जलाकर राख कर दूंगा। काल कट गई, कमरे में खामोशी छा गई। ऐमन के लब कँप-कँपाने लगे। बाबा, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने आप पर गोली चलाई थी? उन्होंने ज़हीर को सिर्फ इसलिए मारा कि हम तड़पें? जावेद नियाज़ी बेटी के सामने शर्मिंदा से सर झुकाकर बैठ गई। बेटी, मेरी ईमानदारी और सच्चाई की कीमत तुम्हारी खुशियों ने चुकाई है। मैं अपनी औलाद की हिफाजत न कर सका। आंखों से आंसू टपकने लगे। ऐमन ने थाम कर कहा, नहीं बाबा, आपने कुछ गलत नहीं किया। अब मैं समझ सकती हूँ ये लोग कितने ज़ालिम हैं। जैसे उन्होंने ज़हीर को मुझसे छीना, वैसे ही ना जाने कितने बच्चों से उनके बाप, कितनी औरतों से उनके शौहर छीने होंगे। बाबा, आपने सच्चाई का सबक पढ़ाया है तो आज क्यों चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं? नहीं, अब मैं ज़हीर के कातलों को सज़ा दिलवा के रहूंगी। मैं उन फ़िरौन सिफ्त लोगों के लिए मूसा नहीं बनना चाहती। उसके लफ्ज़ों में आग थी। बाबा, आप मुझे ट्रेन करें। आप मुझे सिखाएं कि दुश्मन के घरों में घुसकर किस तरह उसकी रूह को लर्जा दिया जा सकता है। मैं अपनी मोहब्बत का बदला लूंगी। उन्हें अपनी सांसों की भीख मांगने पर मजबूर करूंगी। वो बाप के सीने से लगकर रो रही थी। जावेद नियाज़ी ने उसे तसल्ली दी मगर दिल ही दिल में सोचते रहे कि ये सिर्फ वक्ती जज्बात हैं, बाद में वो थक कर खुद ही हथियार डाल देगी। इसी ख्याल से उन्होंने ऐमन को नींद की दवा दी और बीवी को बुलाकर कहा, सानिया, ऐमन को लेकर कुछ दिन अमेरिका चली जाओ। अपनी बहन के घर रहना, मैं बाद में आ जाऊंगा। ऐमन को यहाँ से दूर करना ही बेहतर है। मगर अगली सुबह जब सानिया ने बेटी से ये बात कही तो ऐमन भड़क उठी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक इद्दत है बाबा से ट्रेनिंग लूंगी, उसके बाद इन ज़ालिमों को ख़त्म करके दम लूंगी। सानिया के दिल पर घोंसा सा पड़ा था। ऐमन, पहले ही तुम्हारे बाबा बहुत मुश्किल उठा चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मज़ीद उस आग में कूदो। वीज़ा लगने तक कमरे से बाहर मत निकलना। न जाने कब कोई गोली तुम्हें भी निशाना बना ले।
एमन का गुस्सा फट पड़ा। उसने मेज पर रखा ग्लास जमीन पर दे मारा। मैं बुज़दिल बनकर नहीं जी सकती। मामा, आप लोगों ने सच्चाई सिखाई थी, आज क्यों चाहते हैं कि मैं भाग जाऊँ? मैं पीछे नहीं हटूँगी। मुझे ज़हीर के कातलों को अंजाम में पहुँचाना है बाबा। आप मुझे ट्रेन करेंगे या नहीं? जावेद न्याज़ी ने बेटी की आंखों में जलती हुई आग देखी। वो खामोश हो गई। लेकिन ये कोई वक्ती ज़िद नहीं, ये फैसला है, वो धीरे से बोले। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। उन लोगों से टक्कर लेना मामूली बात नहीं। एमन ने पुरअज़म लहजे में कहा, बस आप एक बार मुझे सिखा दें, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। बाप ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआएं दी। सानिया की आंखें नम होगी, आप क्या कर रहे हैं? बेटी को रोकने की बजाय आगे बढ़ा रहे हैं, मगर जावेद नियाजी जानते थे कि ये वो आग है जो अब किसी तौर पर बुझने वाली नहीं है। यूं इद्दत के दिनों में उन्होंने एमन को शूटिंग, फायरिंग और हर इस हुनर में ट्रेन किया जो उसकी हिफाजत और बदले के लिए ज़रूरी था। एमन ज़हीन भी थी और इंतकाम की आग ने उसे बेहद मजबूत भी बना दिया था। वक्त से पहले ही उसने सब कुछ सीख लिया था और इद्दत खत्म होते ही वो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए थी। एमन बेटी के अंदर जैसे एक तूफान उमड़ आया था। ज़हीर की मौत ने उसे हिलाकर रख दिया था, लेकिन अब वो रोकर या खामोश रहकर जीने वाली नहीं थी। जब बाबा ने पूछा कि आगे क्या करने का सोचा है, तो एमन के लहजे में एक फैसलाकुन अज़म झलकने लगा। बाबा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। अगर उनके अपने गुनाहों की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं, जो मैं खुद सबको सुना इकरार कर बैठे, तो फिर उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। बाबा ने बेयकीनी से पूछा, तुम्हें लगता है ऐसी रिकॉर्डिंग्स ऐसे ही मिल जाएंगी? एमन के होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। मिल जाएंगी बाबा, मैं खुद जाऊंगी उनके ठिकानों पर, उनकी हवेलियों में। रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। हयान खान, वो मुझे अपनी हवेली तक रसाई देगा। ये नाम सुनते ही जावेद नियाजी के औसान खता हो गए। हयान खान? हामिद खान का बेटा? तुम उसे कैसे जानती हो? एमन ने पुरसकून लहजे में कहा, बाबा, सोशल मीडिया का दौर है। 4 माह से मेरी उससे बातचीत हो रही है, दोस्ती बढ़ गई है और अब वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसे कुछ खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ। उसने खुद मुझे अपनी हवेली पर बुलाया है। मैं नबीहा इब्राहिम के नाम से उसके सामने जाऊंगी, अपना हुलिया भी बदल लूंगी, पहचान भी। आपके कुछ दोस्त हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं और फिर मैं उनके बीच में घुसकर वो सबूत लाऊंगी जिनसे उनकी हकीकत बेनकाब हो जाएगी। सानिया जावेद का दिल दहल गया। बेटा, वो लोग इंतहा दर्जे के खतरनाक हैं। लेकिन एमन का लहजा फौलाद की तरह सख्त हो गया। मामा, क्या आप मुझे नहीं जानती? मैं अभी अपने बाबा की बेटी हूँ, अपने इरादों की पक्की। 15 दिन के अंदर जावेद नियाजी ने उसके लिए नए कागजात बनवाए। शनाख्त बदलकर नबीहा इब्राहिम के नाम से एमन हयान खान के करीब पहुंच गई। फेसबुक की 4 माह की दोस्ती में उसने हयान को पूरी तरह मोहब्बत के जाल में जकड़ लिया था और वो दिल हार बैठा था। अब उस मोहब्बत को सीढ़ी बनाकर एमन हामिद खान के मुकाबिल खड़ी थी। हयान ने अपने बाप के सामने डटकर कहा, बाबा, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। हामिद खान की आंखों में शक भड़का। ये कौन है, कहाँ से आई है, उसके बारे में तुम्हें कुछ इल्म भी है कि नहीं? हयान ने एतमाद से जवाब दिया, बाबा, ये ऑस्ट्रेलिया से आई है, मुझसे मोहब्बत करती है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एमन को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि हयान अपने बाप जैसा नहीं है। वो पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और अपने खानदान से बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखने वाला इंसान है। इसलिए तो उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस पर भरोसा किया था। हामिद खान ने बेटे की जिद के आगे हथियार डाल दिए, लेकिन एक शर्त रखी, एक शादी खानदान में भी करनी होगी। ये बात रखना, याद रखना। हयान ने बाप को मुतमईन करने के लिए सर झुका दिया, मगर अपनी आंखों से एमन को यकीन दिला दिया कि वो सिर्फ उसी का है। शादी की तकरीब सादगी मगर शानो शौकत से अंजाम पाई। जब निकाह के कलमात मुकम्मल हुए और एमन ने हया के निकाह में कबूल किया, तो उसके दिल ने खून के आंसू रहे। ये ख्वाब तो उसने ज़हीर के साथ सजाए हुए थे। ये लम्हात तो ज़हीर के होने चाहिए थे, मगर अब वो नहीं था। इंतकाम के लिए एमन को अपने जज्बात को कैद करना पड़ा था। रुखसती के बाद जब वो हयान के कमरे में पहुंची तो दिल में अजीब सा खालीपन था। थोड़ी ही देर बाद हयान आया, आंखों में मोहब्बत की शिद्दत लिए और नरमी से एमन का हाथ थामकर वादा किया, मैं जिंदगी के हर सफ़र में तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हारे अलावा किसी को शरीक हयात नहीं बनाऊंगा। एमन की आंखें बहकने लगी, दिल किसी और अनजानी कैफियत में डूब गया। हयान ने आगे बढ़कर कहा, जल्द ही मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा,
باہر کسی ملک میں اپنی دنیا بسائیں گے۔ مجھے یہ زمین، یہ جائیداد، یہ ظالمانہ نظام بالکل پسند نہیں۔ یہ سن کر ایمن کے قدم جیسے زمین پر جم گئے۔ حیرت نے اس کی طرف دل کو دیکھا۔ یہ شخص تو بالکل اس کی طرح ہی سوچتا ہے۔ وہ بھی اس اندھے ظلم اور جاگیداری کو رد کرنا چاہتا ہے۔ یہی شاید وجہ تھی کہ وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ مگر ایمن کے لیے یہ محبت آسان نہیں تھی۔ جب حیان قریب آیا، محبت کے لمس اپنے حق کا تقاضا کرنے لگا، تو ایمن کا دم گھٹنے لگا۔ آنکھیں بند کرتی تو ظہیر کا چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتی تو حیان کی آنکھوں کی شدت اسے جلانے لگتی۔ رات لمحہ لمحہ کٹتی گئی اور بالآخر حیان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایمن نے دل کو پتھر بنایا اور خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن دل کے کسی ویران خانے میں ظہیر کی یاد کو قید کر لیا۔ اس کی روح بنجر اور خالی تھی، مگر انتقام کا جذبہ پہلے سے زیادہ دہکنے لگا۔ شادی کے بعد کئی دنوں تک ایمن نے حیان کی بے پناہ محبت کو چپ چاپ سہ لیا۔ وہ اپنے اندر الجھتی رہی، مگر ساتھ ہی اس نے حویلی کے ایک ایک کونے کو کھنگال ڈالا تھا۔ اسے بہت سی ایسی چیزیں ہاتھ لگی تھی جو اس کے مشن میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے بس اس لمحے کا انتظار تھا جب حامد خان اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ وہ اس اقرار کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لے۔ ایمن نے یہ ساری تربیت ہی اس کے لیے حاصل کی تھی تاکہ اگر کبھی اس کی حقیقت آشکار ہو جائے تو وہ اپنے دفاع کے لیے لڑ سکے۔ شادی کے پورے 2 ماہ تک گزر چکے تھے اور ان 2 ماہ میں حیان نے اپنی محبت اور خلوص کو بار بار اس پر ثابت کر دکھایا تھا۔ 2 ماہ بعد ایک شام حویلی میں کچھ اجنبی لوگ آئے تھے۔ وہ سب مردان خانے میں بیٹھے تھے۔ ایمن نے پہلی بار ان لوگوں کو دیکھا۔ ان کا انداز، ان کا حلیہ، ان کے پیچھے کھڑے گارڈ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ یا تو سرکاری آفیسر ہیں یا پھر کسی سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمن آہستگی سے قدم اٹھاتی ہوئی مردان خانے کے پچھلے حصے کی کھڑکی کے قریب پہنچی۔ اس کے کپڑوں کے اندر ایک ننھا سا کیمرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ اس نے اندر جھانکا اور سننے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد ہی اسے یقین ہو گیا کہ آج اس کا مقصد پورا ہونے والا ہے۔ حامد خان بڑی بے خوفی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ ایس ایچ او جاوید نیازی اور اپنے داماد کو مروا دینے کے منصوبے میں بھی وہی شریک تھا۔ وہ ظالمانہ کہکے لگاتا ہوا کہہ رہا تھا کہ شہر کے گنڈوں کو اسی نے سپاری دی تھی کہ اس کے نئے نویلے داماد کو سیدھا قبر تک پہنچا دے۔ اس نے بڑی سنگ دلی سے کہا تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی کے بیوہ ہونے کے صدمے نے پورے خاندان کو توڑ دیا، اور اب وہ سب سننے میں آیا تھا کہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ایمن کے کانوں میں یہ الفاظ بجلی بن کر گرے۔ اگرچہ اسے پہلے سے شک تھا کہ اس سب کے پیچھے حامد خان کا ہاتھ ہے، لیکن اس کا اپنے منہ سے یہ اعتراف سننا اس کے دل کے زخموں کو ایک بار پھر تازہ کر گیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی وہ حالت یاد آ گئی تھی جب انہوں نے سب کے سامنے یہ دکھایا کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں، مکان بیچ دیا گیا ہے، سب سے ملنا جلنا ختم کر دیا ہے۔ یہی خبر حامد خان تک بھی پہنچی تھی اور اسی لیے وہ مطمئن ہو کر ہنس رہا تھا۔ ایمن نے اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے کیمرے میں ہر لفظ محفوظ کر لیا۔ اور بھی کئی انکشافات تھے جو اس نے ریکارڈ کر لیے تھے۔ ریکارڈنگ مکمل کر کے جب وہ کمرے میں واپس لوٹی تو حیان اس تلاش کر رہا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی جانے من؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ وہ مسکراتا ہوا آگے آیا اور اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اس کے گردن پر پیار بھری بوسہ دیتے ہی اچانک اس کی نظر ایمن کی شرٹ کے گلے کے اندر چھپے کیمرے پر پڑی۔ ایک جھٹکے سے اس نے وہ کیمرہ نکال لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور لہجے میں سختی تھی۔ ایمن کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ اسے لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ حیان پلیز یہ مجھے واپس دے دو۔ اس نے کانپتے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ حیان نے مگر سختی سے سوال کیا، پہلے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ ایمن کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کیمرہ جس نے اتنے دنوں تک حیان کی نظر سے خود کو بچائے رکھا آج اسی لمحے میں پکڑا جائے گا۔ حیان نے بنا اس کی بات سنے ویڈیو کھول کر دیکھنا شروع کی۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھتی گئی اس کی آنکھیں پھیلتی گئی۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی وہ ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب تم نے کیوں ریکارڈ کیا ہے؟ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ ایمن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ چھپانا ہے بیکار ہے۔ اس نے سچ سچ سب بتا دیا، اپنی شادی کا حال، ظہیر کی موت کی حقیقت اور اپنے مقصد کی ساری تفصیل۔ حیان کتنی ہی دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر ایک کونے میں جاتے ہوئے لہجے میں بولا، تو تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، میں تو بس تمہارے انتقام کی ایک سیڑھی تھا۔ اس لیے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نے ایمن کا دل زخمی کر دیا تھا۔ حیان پلیز، میں نے حویلی میں قدم رکھنے کے لیے تم سے شادی کی تھی، لیکن اب یہ رشتہ میرے دل کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔
मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ज़हीर के कातिलों को सज़ा दिलवाना मेरा वादा है। तुम्हारे बाबा के ज़ुल्म ख़त्म नहीं होंगे। न जाने कितनी लड़कियों के सुहाग उजड़ चुके हैं, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। ये सब तुम भी जानते हो। वो तेज़ी से बोलती कि तुम्हारा ज़मीर भी मुतमईन नहीं है, इसलिए तो तुम अपने बाबा से दूर रहते हो, उसके किसी भी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनते, उनके साथ ज़मींदारी नहीं संभालते। तुम तो हमेशा यहाँ से जाने की बात करते हो, लेकिन मैं ये मिट्टी नहीं छोड़ सकती। ये मेरा वतन है। मैं इन नासूरों को ख़त्म करना चाहती हूँ, जो इस मिट्टी को पलीद कर रहे हैं। हयान, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपने ज़मीर को सुकून दो और मेरे साथ मिलकर इन सबको इनके ज़ुल्म की सज़ा दो? एमन ने लरजती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ और करती रहूंगी, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती। ये कहकर वो आगे बढ़ी और चुटकी से कैमरा अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। हयान ने गहरा सांस लिया मगर भरी दम मुस्कुराते हुए कहा, अपना सामान पैक करो एमन, हम हनीमून पर जा रहे हैं। एमन हैरत से पलटी, क्या क्या कह रहे हो? हयान ने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। उसने उंगली का इशारा मोड़कर देखा तो दरवाजे पर हामिद खान खड़े थे। आइए बाबा, हैरान। हयान ने फौरन अपने तासुरात बदले और मुस्कुराते हुए हामिद खान की तरफ मतवज्जा हुआ। हामिद खान दरवाजे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर शक का साया सा था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम दोनों के झगड़े की आवाज़ सुनी, सोचा देखूं सब खैर है या नहीं। उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे को देखा। जी बाबा, सब ठीक है। बस मैं चाह रहा था कि अपनी बीवी को हनीमून पर ले जाऊं, लेकिन आपकी बहू के नखरे खत्म ही नहीं होते। इसी बात पर बहस हो रही थी। हया ने जैसे तैसे बात खत्म की। हामिद खान ने कहका लगाया और तंजिया अंदाज में बोले, ले जाओ ले जाओ। जब वापस आओगे तो तुम्हारी दूसरी शादी भी करवा देंगे। जाओ बहू, अभी कुछ दिन खूब इंजॉय कर लो अपने शोहर के साथ, फिर तो तुम्हें सौतन के साथ ही रहना गुजारा पड़ना पड़ेगा। वो हंसते हुए बोले, पलटे और कमरे से निकल गए। दरवाजा बंद होते ही यान ने पलटकर एमन को देखा। उसके चेहरे में संजीदगी थी। फौरन सामान बांधो, हमें शहर जाना है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि तुम उसे इतना आसान समझ रही हो। अगर ये केस खुलने से पहले दब गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। मेरे कुछ करीबी दोस्त मीडिया हाउसेस में हैं। हमें ये वीडियो पहले मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचानी होगी। उसके बाद ही मिनिस्टर हाउस जाकर कोई अमली कदम उठाना होगा। एमन, तुम अकेली ये सब नहीं कर सकती। ये काम मेरा साथ ले जाकर ही होगा। एमन आंखों में नमी लिए उसे देखती रही। उसके सामने वही मासूम लड़का खड़ा था जिसका दिल अपने ही बाप के जुल्म के बोझ से दबा हुआ था, और वो जो पहली बार हिम्मत करके अपने जमीर की आवाज पर खड़ा हो रहा था। एमन ने कुछ बोलना चाहा मगर गले में ही अल्फाज फंस गए। हयान ने उसका हाथ थामा और सामान पैक करने में मदद दी। शाम के अंधेरे फैलने से पहले वो दोनों हवेली छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए थे। शहर के नीचे ही हयान ने अपने दोस्तों की मदद से सारी वीडियोस को वायरल करवा दिया। मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया पर नामालूम पते से वीडियो पहुंच गई और फिर तूफान बर्पा हो गया। एमन ने जहीर मलिक के कातिल को समेत सब दूसरे संगीन जुराइम का मकसद खवातीन को कानून के खिलाफ दर्ज करवा दिया गया। अगरचे पुलिस अब भी हामिद खान के असर शौक में थी, मगर सोशल मीडिया पर उठने वाली अवामी चीखों पुकार ने हुकूमत के लिए रास्ता बना कर दिया था। अपनी हुकूमत बचाने के लिए आखिरकार उन्हें हामिद खान को गिरफ्तार करना ही पड़ा। जब मुकदमा अदालत में चला तो अवामी दबाव बढ़ता ही गया कि कई महीनों तक गवाहियों, सबूत और एहतजाज जारी रहा और बिलाखिर अदालत ने फैसला सुना दिया, हामिद खान को फांसी की सजा। हामिद खान को तब समझ आया कि ये सियासतदान किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपनी सियासत के होते हैं। जो कल तक उसके साथ खड़े थे, आज उसे तख्तादार भेजने के फैसले के हामी बन गए थे। वो भी इसी खेल की भेंट चढ़ चुका था। हयान के लिए सब कुछ आसान नहीं था। अपने ही बाप को मुजरिम की कुर्सी पर देखना और फिर उसे मौत की सजा पाते देखना उसके दिल को चीर गया था। लेकिन वो जानता था कि सही और गलत में फ़र्क ज़रूरी है। एमन के वालिदैन से मिलकर उसे सुकून मिला। उन्होंने भी हयान को दिल से कबूल कर लिया। इमन एक दिन हयान का हाथ थामे ज़हीर मलिक की कब्र पर पहुंची। वो कितनी देर खामोशी से बैठी रही, आंसू बहाती रही। दिल में एक अजीब सा खला था। वह जानती थी कि मोहब्बत कभी नहीं मरती, बस कहीं दिल के किसी गोशे में छुप कर रहती है। कभी कोई जुमला, कभी कोई याद, कभी कोई चलते चलते कोई मंजर उस मोहब्बत को जिंदा कर देता है। ज़हीर की मोहब्बत भी उसके दिल में जिंदा थी, लेकिन अब हयान की मोहब्बत भी अपनी जगह बना ली थी। हयान उसे दोबारा हवेली ले आया, मगर अब वो हवेली जुल्म और जबर की अलामत नहीं रही थी, बल्कि इंसाफ और भलाई का मरकज़ बनने लगी थी। हयान ने गांव के लोगों के लिए नए फैसले किए, उनके हकूक दिलाने की कोशिश शुरू की। एमन ने अपनी हिम्मत और हौसले से अपनी दुनिया बदल दी थी।
اگر ہر شخص اپنے حصے کا قدم ظلم کے خلاف اٹھاتے گا تو ظلم ایک نہ ایک دن ضرور اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ ایمن کہاں کھو گئی ہو؟ آؤ، گاؤں کے لوگ تم سے ملنے آئے ہیں۔ حیان کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ چونک کر اپنے ہاتھ میں تھامی انگوٹھی کو دیکھنے لگی تھی، وہی انگوٹھی جو ظہیر نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو گہری نظر لی، پھر انگوٹھی کو کیس میں بند کر کے الماری میں رکھا اور مسکرا کر حیان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔